Classification of organic compounds. Classification of organic compounds as well as nomenclature of organic compounds. So let us start with this session. So first we are going to understand the classification. So first we are going to learn the classification of organic compounds. Classification of organic compounds. So classification of organic compounds, you have an organic compound, OC for organic compound. This organic compounds can be classified into two parts. First is known as open chain compounds. These open chain compounds are also known as aliphatic compounds. Aliphatic compounds. These are also known as acyclic compounds. Acyclic compounds. So now you can see that we are going to learn classification of organic compounds. Organic compounds means ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है. ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और उसकी और भी थियरीज है, बट हम उस थियरी में नहीं आते हैं, हम बस इसको पढ़ते हैं. So organic compound can be classified into two types: open chain, which is also known as aliphatic, which is also known as alicyclic compounds. And second one is known as closed chain compounds. Closed chain compounds. These are also known as ring compounds. Closed chain compounds, ring compounds, or they are also known as cyclic compounds. Okay, so you have these two: closed chain compounds, open chain compounds. Closed chain compounds, you can see दोनों एक साथ आप देख सकते हो. Open chain compounds, organic compounds is known as open chain compound. Organic compound is known as open chain compounds और क्लोज चेन कंपाउंड्स. मतलब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. वो ओपन चेन भी हो सकता है, वो क्लोज चेन भी हो सकता है. ओपन चेन इज नोन एज एलिफैटिक. इट इज ऑल्सो नोन एज असाइक्लिक. अ मीन्स नॉट, साइक्लिक मीन्स साइकिल, जो साइक्लिक नहीं है. तो ओपन चेन एलिफैटिक भी हो सकता है, जो आपको बार बार कन्फ्यूजन रहता है. और फिर असाइक्लिक का मतलब जो साइकिल फॉर्म में नहीं है, रिंग फॉर्म में नहीं है. क्लोज चेन क्या होता है? जो रिंग हो सकता है उसको साइक्लिक भी बोल सकते हैं. तो इतना मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया. ठीक है. सो नेक्स्ट देखो आप. नेक्स्ट we are going to learn about next. So this first we are going to learn about the open chain compounds. Open chain compounds are further classified into this acyclic or open chain compounds are further classified into two types. Sorry, two types, that is known as saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated. Saturated compounds and unsaturated compounds means aliphatic compounds or open chain compounds are further classified into two types: saturated and unsaturated. एलिफैटिक आपको क्लियर हो गया. एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ? जो ओपन चेन है, जिसमें ब्रांचिंग, जिसमें रिंग नहीं है. ब्रांचिंग पॉसिबल है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो ब्रांच भी हो सकता है, बट उसमें रिंग नहीं होना चाहिए. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिफैटिक. और ओपन चेन और असाइक्लिक.
It is further classified into two types, saturated and unsaturated. So what is saturated unsaturated? आपको ऑलरेडी पता, मुझे क्लियर आपको कि ये मुझे आइडिया है कि आपको पता है सैचुरेटेड क्या होता है. सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर नोन एज अल्केन्स. अल्केन्स मतलब जिसमें कार्बन जो होगा वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, सिंगल बॉन्डेड है. यहाँ पे जितने भी कार्बन, मैंने हाइड्रोजन शो नहीं किया है बट वो आपको अंडरस्टूड है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हमने कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच किया है. अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ बेटा? अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि इसको आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो. कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में. कौन सा? अल्कीन्स, अल्कीन्स एंड क्या? अल्काइंस. अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अल्कीन्स मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइंस में जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा. क्लियर हो गया? आपको मैं थोड़ा सा इसको फिर से दिखा दूं आपको. ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड. Organic compounds are classified into two types, open chain or closed chain. Open chain are also known as aliphatic or acyclic. Closed chain are also known as ring or cyclic. Aliphatic compounds, aliphatic compound का मतलब क्या हुआ? ओपन चेन जिसमें रिंग नहीं है उसको हम एलिफैटिक बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं, असाइक्लिक बोलते हैं. इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स अल्केन्स, अनसैचुरेटेड मीन्स अल्कीन्स और अल्काइंस, जो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको. तो क्लियर हो गया? एलिफैटिक क्लियर हो गया, ओपन चेन क्लियर हो गया. एलिफैटिक ही ओपन चेन है. और ओपन चेन क्या होता है और एलिफैटिक क्या होता है? जिसमें कार्बन रिंग में नहीं होता, स्ट्रेट होता है, उसमें ब्रांचेस हो सकती है. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे करके. ये सभी क्या? ओपन चेन कंपाउंड है. और मैं साइक्लो बोलूँगा तो क्या हो गया? साइक्लिक कंपाउंड हो गया, जहाँ पे साइक्लो आपने लगा दिया. सो नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट? क्लोज चेन कंपाउंड. बिकॉज क्लोज चेन ही है जो ज़्यादा बड़ा है और वही आपको उसमें ज़्यादा आपको पार्ट्स मिलने वाले हैं. ओपन चेन एलिफैटिक तो कम है. सो नाउ वी आर, आई एम गोइंग टू दिस size, going to increase the size of this 100, and now we are going to start. This closed chain is further classified into two types. Further classified into what? Two types. कौन कौन सा बेटा? कौन कौन सा बेटा? देखो आप जरा. दिस इज होमोसाइक्लिक, मतलब इसमें रिंग फॉर्म में होंगे कंपाउंड्स. होमोसाइक्लिक एंड क्या? हेटेरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक. So this homocyclic is further classified into two types. होमोसाइक्लिक का मतलब एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा रिंग जिसमें सभी जो एटम्स है, रिंग के सभी एटम्स क्या है? कार्बन है. उसको हम क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक. होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स साइक्लिक, मतलब आपके पास कार्बन की जो चेन और सॉरी जो आपके पास रिंग है, जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, उस साइक्लिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स है सब क्या है? रिंग के, रिंग वाला जो एटम्स है वो कार्बन है. रिंग के अंदर क्या है? कार्बन एटम्स, और कोई एटम्स अटैच नहीं है. उसे हम क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक. इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. कौन कौन सा बेटा टू टाइप्स है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन के बाद? दिस इज नोन एज एलिसाइक्लिक. ये जो आपको कंफ्यूजन था काफी लोगों को, एलिसाइक्लिक. एंड सेकेंड वन इज नोन एज एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक एंड क्या? एरोमेटिक. एरोमेटिक. सो एलिसाइक्लिक क्या होता है? दीज आर द कंपाउंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिसाइक्लिक. दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग द प्रॉपर्टीज लाइक एलिफैटिक कंपाउंड्स. और एलिफैटिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो पता, ओपन चेन वाले जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, या डबल बॉन्ड होता है, या ट्रिपल बॉन्ड होता है. बट उनकी एलिफैटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, बट रिंग नहीं हो सकता. एलिफैटिक में रिंग नहीं होता. बट अगर मैं एलिसाइक्लिक बोलूँगा तो अब जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका जो नेचर है वो एलिफैटिक जैसा है, इसलिए उनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं. दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आप समझना. एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? ओपन चेन जिसमें रिंग नहीं है, और उनकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे डबल ट्रिपल बॉन्ड की अलग प्रॉपर्टी होंगी, सिंगल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन सिंगल कार्बन. बट जो एलिसाइक्लिक है इसमें कार्बन एटम है बट वो साइकिल में है, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एलिफैटिक से मैच करती है. इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो एलिफैटिक कंपाउंड से, ओपन चेन कंपाउंड से मैच करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिसाइक्लिक. मीन्स एलिफैटिक प्लस साइक्लिक.
मतलब प्रॉपर्टी जो है वो एलिफैटिक से मैच करती है, बट ये रिंग में है, तो इनको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिस वन साइक्लोब्यूटेन, एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन। So these are the examples of alicyclic compounds. दूसरा एग्जाम्पल आप देखो जरा, आप ऐसे ही बना सकते हो, साइक्लोप्रोपीन, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया बीच में, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा बना देता हूँ, इसको फिर से रब कर देता हूँ, ये देखो, ये आप फिर से देख लो उसको, ये मैं बीच में एक ऐसे, ये भाई इधर का ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो आप देखो जरा एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल, ये आप ऐसे बना लो और यहाँ पे ये लगा दो, तो ये क्या, साइक्लोप्रोपीन, 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 नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लेंगे, अभी तो थोड़ा बहुत क्लियर भी आपको, साइकिल फॉर्म में है। इस साइकिल में कितने कार्बन है, एक दो, एक दो तीन, तो तीन साइकिल यहाँ पे है, एक दो तीन करके, तो इन तीन साइकिल में, इन तीन कार्बन के जो साइकिल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थ्री कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप, डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, इन, तो प्रोपीन हो गया, बट साइक्लिक फॉर्म में तो साइक्लोप्रोपीन। अगर ये स्ट्रेट चेन होता तो प्रोपेन बोल देते या प्रोपीन बोल देते। एली साइक्लिक क्लियर हो गया, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट था, इसलिए मैं बार बार इसको इंसिस्ट कर रहा हूँ। एली साइक्लिक का मतलब साइक्लिक में है, साइक्लिक है, कार्बन एक दूसरे से साइकिल में अटैच है, और साथ में इनका जो नेचर है वो ओपन चेन से या एलिफैटिक कंपाउंड से मैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज एरोमेटिक। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस साइक्लिक कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है बेटा, एरोमेटिक का मतलब हुआ, एरोमेटिक का मतलब हुआ कि आपके पास जो रिंग है दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, मतलब आपके पास जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें एक जो रिंग होगी वो बेंजीन की होगी। एरोमेटिक बना हुआ किससे, एरोमा से। एरोमा का मतलब क्या होता है, स्मेल। तो आपके पास एरोमेटिक का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और उसमें सबसे सिंपल पार्ट क्या है, सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, बेंजीन। मतलब ऐसा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझ में कुछ आया? मैं बोल रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जिसमें एक स्पेशल क्या होती है, स्मेल होती है, और उसका, और दूसरा उसमें कंडीशन क्या है कि उसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए। तो इसका दूसरी तरह से बोलो आप कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें एक रिंग किसकी होगी, बेंजीन की होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग देखो आप, इसमें सभी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, कार्बन, तो रिंग में कार्बन है, और इनकी एक ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, एरोमेटिक में ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, और कम से कम एक बेंजीन रिंग तो होती है, सिक्स मेंबर्ड रिंग। इसमें सिक्स मेंबर है ना, 1 2 3 6 कार्बन है, तो इसको सिक्स मेंबर्ड रिंग भी बोलते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, दूसरे एग्जाम्पल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, दिस एग्जाम्पल यू कैन टेक दिस, ये बेंजीन रिंग है बट इसमें आपने ऐड कर दिया CH3, तो ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और ये क्या है, इसका नाम है टोलुइन, बट इसमें एक बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है, और साथ में ये CH3 है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसमें एक बेंजीन रिंग है। ये दोनों, ये बेंजीन है सिंपल, और ये टोलुइन है जिसमें एक बेंजीन रिंग है। सो दोनों बातें क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो आप नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखो, इसके बाद आपने बोला था हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक को मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक, अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है भाई, हेट्रो का मतलब नाम से क्लियर है कि साइक्लिक फॉर्म में है, बट उस साइकिल में, उस रिंग में आपने एक कार्बन को हटा के कोई और एटम उसमें ऐड कर दिया है। सो हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स, heterocyclic compounds are cyclic compounds having ring formed
of more than one kind of atom. Means you have a ring, a cyclic compound in which carbon, in which there is a presence of carbon as well as other atoms also. मतलब एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो साइक्लिक है, उसमें कार्बन भी है बट कार्बन के साथ कोई और एटम भी अटैच है. सो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक. heterocyclics. Heterocyclics are further classified into two types. फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. जैसे आपने होमोसाइक्लिक को क्लासिफाई करा था, कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हो बेटा? टू टाइप्स में. देखो बेटा, फर्स्ट हेट्रो हेट्रो एलिसाइक्लिक. फिर से वही आ गया. लास्ट टाइम क्या था? एलिसाइक्लिक ओनली. वो होमो से बना था तो आपने होमो एलिसाइक्लिक और सिंपली एलिसाइक्लिक. यहाँ पे क्या है? हेट्रो एलिसाइक्लिक. मतलब आपके पास एक रिंग है, उसमें कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन. ये चारों पोजीशन पे कार्बन है. बट इसमें से जो 5 मेंबर रिंग है उसके एक पोजीशन पे आपने क्या ऐड कर दिया? ऑक्सीजन. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें हेट्रो हो गया. ये साइक्लिक है, यस. एली साइक्लिक है, यस. क्यों? क्योंकि इसमें देखो जरा, कोई ऐसा बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग नहीं है. इसका जो नेचर होगा वो एलिफैटिक कंपाउंड से मैच करेगा तो उसको हम एलिसाइक्लिक बोलेंगे. बट इस एलिसाइक्लिक में क्या अटैच हो गया? ये हेटेरो एटम. मतलब हेटेरो का मतलब क्या हुआ? अदर देन कार्बन. अदर देन कार्बन दैट मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर. सो दिस इज नोन एज हेटेरो एलिसाइक्लिक. दूसरा एग्जाम्पल देखो आप. दूसरा प्यारा सा एग्जाम्पल देखो. ये देखो, यहाँ पे आपने ऐड क्या कर दिया? सल्फर. फिर से देखो, इस पूरे रिंग में 4 कार्बन है और एक सल्फर है. So these are known as what? Heteroalicyclic. Heteroalicyclic. Next, next heteroaromatic. 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 अब ये heteroaromatic में क्या होगा बेटा? फिर से अब देखो, जैसे एरोमेटिक में क्या था? एरोमेटिक में बेंजीन रिंग था. बेंजीन रिंग था तो उसको आपने एरोमेटिक बोल दिया. अब हेटेरो एरोमेटिक में क्या होगा? वो एरोमेटिक होगा, मतलब स्पेशल एरोमा होगा, स्पेशल एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. बट उसमें बेंजीन रिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरो एरोमेटिक. हेटेरो एरोमेटिक. एग्जाम्पल के लिए अभी जो आपने ऊपर एग्जाम्पल लिए थे उसी का ले लो आप. एग्जाम्पल देखो, ये मैंने बनाया, ये देखो. अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा इसको तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरो एलिसाइक्लिक. बट अगर मैं इसमें ये देखो, ये ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया तो और तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हेटेरो एरोमेटिक. क्यों बेटा? क्योंकि ये एरोमेटिक इन नेचर है. कैसे एरोमेटिक है? मैं फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ क्यों ये एरोमेटिक है. क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये देखो, इसमें ऑल्टरनेट, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है. मतलब यहाँ पे डी लोकलाइजेशन है, जैसे बेंजीन में होता है डी लोकलाइजेशन. बेंजीन में जैसे डी लोकलाइजेशन होता है, मैं इसको दिखाता हूँ बेंजीन वाला, तो आप उससे कंपेयर करो थोड़ा सा क्योंकि तभी क्लियर होगा आपको. ये बेंजीन है. तो ये बेंजीन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये मूव करते रहते हैं. देखो बेटा, ये ऐसे मूव करते रहते हैं ये सब, तो इनको बोलते हैं डी लोकलाइजेशन. तो आप उसको फिर ऐसे भी शो कर देते हो, ऐसे, ये ऐसे शो कर देते हो. वैसे यहाँ इसलिए इसको एरोमेटिक बोलते हैं, इसलिए ये एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है. इन द सेम वे, इन द सेम वे ये वाला भी, ये जो मैंने आपके लिए लिखा है, ये कंपाउंड भी सेम वे में है. यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर. तो ये सब घूमते रहते हैं रिंग के अंदर और एक स्पेशल कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं. बट जो बेंजीन है उसमें केवल कार्बन है तो उसको सिंपली एरोमेटिक बोलते हैं. और यहाँ पे ये भी एरोमेटिक है बट इस एरोमेटिक में क्या है? हेट्रो एटम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स. हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स. I think you guys are clear with this classification of organic compounds. Even though if you have any doubt, please ask me beta. Please ask me. Okay, please ask me. Now I'm going to show these in one frame. You can see here. Just look at here. Classification of organic compounds. It is classified into two types.
classified into two types, open chain. Open chain is also known as aliphatic or alicyclic. ठीक है, that is classified into two types, saturated, unsaturated, saturated alkanes, unsaturated alkene and alkynes. Next, closed chain compounds or ring compounds or cyclic compounds, homocyclic and heterocyclic. Homocyclic is classified into two types, alicyclic and aromatic. एलिसाइक्लिक क्या है आपको पता है, एलिसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक है कंपाउंड, उसमें कार्बन एटम्स केवल हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एलिफैटिक से मैच करती है, उनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं। एली का मतलब एलिफैटिक, साइक्लिक का मतलब होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक है बट प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, एलिफैटिक से। एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, इसमें सभी कार्बन क्या है, सभी कार्बन सभी रिंग के अंदर, सॉरी, रिंग में सभी के एटम्स क्या है, कार्बन है और इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल एरोमा है। इसमें एक एक कम से कम क्या होता है, ये जो एरोमेटिक होते हैं उसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जिसमें जो साइक्लिक हो बट उसमें रिंग के अंदर कार्बन के साथ साथ कोई और एटम भी अटैच होगा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, हेट्रो एलिसाइक्लिक, हेट्रो एरोमेटिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक क्या है, एलिसाइक्लिक सेम है, एलिसाइक्लिक का मतलब सेम है, बट हेट्रो ऐड होने से क्या हो गया कि उस साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम अटैच हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स, आपने यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने लिखे हैं। हेट्रो एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक होगा मतलब ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बट साथ में उस रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या सल्फर प्रेजेंट होगा या नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, जो एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी लिखे होंगे। तो आई थिंक it is clear to all of you. Okay, okay beta, thank you. Now I'm going to explain you next concept, that is groups, that is known as groups. Now we are going to learn another things in this session, that is groups. तो ये ग्रुप पढ़ाने के बाद इसको फिर मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे IUPAC. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्रुप्स. ग्रुप्स, सो फर्स्ट आता है आपका नॉर्मल ग्रुप. नॉर्मल, नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. स्मॉल एन से जो स्ट्रेट चेन हो गया, जो स्ट्रेट चेन होता है उसको हम नॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिखा सर वी हैव एन ब्यूटाइल ग्रुप, एन ब्यूटाइल, तो एन ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ, यू हैव 4 कार्बन, मैं हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा हूँ, लाइक दिस। तो एन ब्यूटाइल बोलूंगा तो मतलब कार्बन ऐसे अटैच होंगे सिंगल। सो मैंने बोला एन प्रोपाइल, प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गया, सो 3 कार्बन, तो ये हो गया आपका सर ये 3 कार्बन, 3 कार्बन। इसको हाइड्रोजन भी आप ऐड कर सकते हो बेटा, मैंने हाइड्रोजन ऐड नहीं किया है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें आपको। तो एन ब्यूटाइल अगर बोलूँ तो नॉर्मल मतलब जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अटैच है, उनमें कोई आपने साइड चेन अटैच नहीं किया है। जैसे मैं फिर से एग्जांपल दे दूँ, जैसे मैंने बोला एन ब्यूटाइल, तो अगर मैं एन ब्यूटाइल बोलता हूँ तो मैं लिखूंगा क्या, CH3 CH2 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 डैश, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये वाला, इसको शॉर्टकट में लिखा था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया मैंने, तो ये एन ब्यूटाइल है। तो ये स्ट्रेट है, इसमें कहीं पे ब्रांचिंग मतलब इधर या इधर इधर मैंने कोई और ग्रुप या कंपाउंड या मिथाइल इथाइल कुछ ऐड नहीं किया है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल जब भी होगा तो उसमें कुछ और ऐड नहीं होगा, साइड चेन अटैच नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल एन ब्यूटाइल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए यू हैव CH4, CH4, सो CH4 दिस इज नोन एज हैविंग 1 कार्बन, सो मेथ, ये तो आपको पता है 1 कार्बन के लिए मेथ एथ ऐसा होता है, तो 1 कार्बन के लिए मेथ, बट इसमें 4 सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया ये एन। नाउ वी आर रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस मीथेन, सो व्हाट वी विल गेट, CH3, एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, CH3 फिर डैश, so we get a group. So again it has 1 carbon, so meth, but we have removed 1 hydrogen, आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, so you have to add what, YL, so this is known as methyl group. In the same way, in the same way you can take this example, you have C2H6,
or you can write like this, CH3 CH3. So you are removing one hydrogen, so you get C2H5. From here also you can remove hydrogen from here or here, no problem, because we have CH3 CH3. So then we get CH3, किधर से भी करो आप, CH2 dash. So this is known as what beta? This is known as ethyl group. Ethyl group. And shortcut में इसको हम क्या लिखते हैं, ET. ET, ethyl group और ET. एंड शॉर्टकट में मिथाइल के लिए क्या लिखते हैं बेटा, ME. शॉर्टकट में मिथाइल को क्या लिखते हैं, ME. ME मिथाइल, जहाँ पे ME लिखा होगा मतलब मिथाइल की बातें हो रही, ET लिखा हुआ तो इथाइल की बातें हो रही. So these groups are now clear to all of you. Next important group, when you have 3 carbon. When you have 3 carbon, so let us talk about iso group. iso बोलो या iso बोलो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आना चाहिए आपको iso group. So iso group कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो like this. You have CH3, CH and CH3. This is iso. मतलब अगर आपके पास ऐसा आपको दिख रहा है कहीं पे, तो दैट इज नोन एज iso. You can write like this also. ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखना, CH3 ट्वाइस, ये 2 बार है CH3, तो CH3 ट्वाइस और क्या CH, मतलब ये CH से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है लाइक दिस. दिस इज नोन एज आइसो ग्रुप. तो ये आइसो ग्रुप में मैंने जो लिखा आपके लिए एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल लिखा है. अब इस आइसो ग्रुप में अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल लिख दूँ तो कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा, 3 कार्बन. तो 3 कार्बन के लिए ये आइसो हो गया क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर है, और 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोप. और मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, देखो यहाँ पे डैश लगाया है, यहाँ पे भी डैश लगाया है, तो ये हो गया YL. तो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसी से रिलेटेड. ये देखो, थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट बेटा, देखो जरा आप. नाउ यू हैव दिस CH3 CH CH3 एंड CH2 फिर डैश. क्या आपको आइसो इसमें दिख रहा है, यस. ये आइसो है ना, ये आपको बार बार चेक करना है, ये आइसो है, यस. बट इसमें कार्बन कितने हैं बेटा, अब आप आइसो है तो आपने आइसो लिख दिया, बट कार्बन कितने हैं, 4 टोटल कार्बन, इसको भी इंक्लूड करना है ना. ये आइसो ग्रुप हो गया, ये आइसो ग्रुप हो गया, बट इसमें टोटल कार्बन कितने, 4, तो आइसो ब्यूट. और आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप. आइसो ब्यूटाइल ग्रुप. अगर आप हाइड्रोजन नहीं ये हाइड्रोजन शो नहीं करोगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ऐसे देखो, ये देखो, ये आप, ये सेम ही है आइसोब्यूटाइल, बट आपने शॉर्टकट में हाइड्रोजन शो नहीं किया, आप ऐसे दिख रहा है. तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपको आइसो दिख रहा है. क्लियर हुआ थोड़ा, आइसोब्यूटाइल. देखो फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर देखो, फिर आपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ये देखो, तो आइसो दिख रहा है, ये आइसो ही है यहाँ पे, आइसो है, बट इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 5. तो दिस इज आइसो, 5 कार्बन के लिए पेंट, और हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो आइसोपेंटाइल. सो ऐसे आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल लाइक दिस. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस. अगर आपको ऐसे दिखता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो. तो कन्फ्यूजन ना हो तो एक और ग्रुप आपको मैं दिखाता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप देखो आप जरा, सेकेंडरी ग्रुप. सेकेंडरी, ये ग्रुप अगर आपको पहचाना आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत मजा आने वाला है. ये सब ग्रुप अगर आपको पहचाना आ रहा है तो. सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, लाइक दिस, देखो जरा, यू हैव दिस स्ट्रक्चर, यू हैव दिस स्ट्रक्चर, लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप. ठीक है. मतलब ये जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन हटाया है उससे कौन अटैच है, ये कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल है. यहाँ पे ये देखो कौन सा है, CH3 CH2, ये इथाइल है. तो ये ध्यान देना. तो अगर आपके पास ये जिधर से आपने हाइड्रोजन हटाया है उससे कौन अटैच है, मिथाइल, और उससे कौन अटैच है, इथाइल. दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रुप. सेकेंडरी ग्रुप. एग्जाम्पल इसी के साथ ऐड कर लो.
एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे दे दिया, फिर से मैं लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2, फिर यहाँ पे लिखा मैंने C, फिर ऐसे डैश लगाया, यहाँ पे CH लग के डैश लगाया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। तो सबकी वैलेंसी 4 है। यहाँ पे ये डैश इसके पास लगा हुआ है, इस कार्बन के पास। इसको कितने कार्बन, ये तो सेकेंडरी हो गया भाई, सेकेंडरी जैसा दिख रहा है, बट कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट एंड हाइड्रोजन हटा दिया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी और आइसो में फ़र्क देखना बेटा, सेकेंडरी और आइसो में फ़र्क देखना। मैं यहाँ पे आपको फ़र्क के लिए, आपको फ़र्क दिखाने के लिए मैं आइसो भी दिखाता हूँ। आइसो, अगर मुझे आइसो ब्यूटाइल लिखना होगा तो क्या है, CH3 CH, और यहाँ पे CH3 है, और फिर यहाँ पे CH2। देखो जरा आप डिफरेंस देखना। तो CH3 ग्रुप इस केस में सेकेंडरी ब्यूटाइल में CH3 ग्रुप किससे अटैच है, जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है। और आइसो में कहाँ से, कहाँ पे अटैच है वो जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया वहाँ पे अटैच नहीं है, उसके जस्ट पीछे वाले सेकंड पोजीशन पे अटैच है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान देने का है, इसको प्रैक्टिस करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप ड्रॉ कर पाओगे कि व्हेन this CH3 is attached with what, C, this second carbon of the chain, second carbon of the chain। अब जैसे भी आपको इसको याद करना हो, सेकंड कार्बन ऑफ द चेन, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज आइसो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। बट यहाँ पे जो CH3 अटैच है वो उस कार्बन से अटैच है जहाँ से आपने क्या हटाया है, हाइड्रोजन, जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है। ये जो हाइड्रोजन जहाँ से आपने हटाया वहाँ पे अटैच है। तो सेकेंडरी और उसमें यही फर्क है। तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान में रखना है, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी confusing for you guys, so that these confusion can be removed, or you can minimize the confusion just by practicing a lot. When you are going to write down what, normal group, iso group, secondary group, tertiary group, so when you will write and then read or look at those pages again and again, then you will understand, this is iso group, this is butyl group. Okay beta. Next group which we are going to learn, that is known as tertiary tertiary group beta, tertiary group. What is tertiary group? This is represented like this. ये सिंपल है, इसको पहचाना बहुत ही सिंपल है। ये देखो डैश। सो और when a carbon is bonded to 3-methyl group, 3-methyl, so this is known as tertiary group, tertiary, this is known as tertiary। टर्शरी, बट कितने हैं टर्शरी में, कितने कार्बन है 4, तो दिस इज टर्शरी, और टर्ट लिखते हैं शॉर्टकट में, टर्ट। कितने कार्बन है बेटा 4, तो ब्यूट और वाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। यू कैन राइट अनदर एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो। यू हैव दिस, मैं हाइड्रोजन नहीं लिखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जा रहा है मुझे। सी, ये देखो ये, अब इसमें ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, दिस इज वॉट टर्शरी। बट टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, टोटल कार्बन कितने, मैं CH3 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 और यहाँ पे क्या CH2। सो यहाँ पे टर्शरी दिख रहा है, यस 1 2 3 कार्बन से अटैच है ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन। बट टोटल कार्बन कितने हैं 5, सो दिस इज टर्ट वॉट, टर्ट पेंटाइल, टर्ट पेंटाइल, टर्ट पेंटाइल, टर्ट पेंटाइल। Okay, this is tert pentyl. Next we are going to learn about neo group. We are going to learn about neo group. Neo क्या होता है, और सिंपल है, when a carbon is bonded to 4-methyl group, when a carbon is bonded to 4-methyl group like this, CH3 C, CH3 CH3 CH3, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नियो ग्रुप। टोटल कार्बन, जैसे मैंने अभी, मैं इसको थोड़ा सा इधर देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इधर से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे CH2 फिर डैश लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे कितने हैं, ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है Cl3 जैसा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये CH3 है, और ये है बेटा CH3 है, कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो CH3 CH3 CH3, ठीक है, दिख रहा है आपको बेटा।
और यहाँ पे आपने देखो CH2 डैश, तो दिस इज नोन एज नियोपेंटाइल, 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 नियोपेंटाइल ग्रुप। ओके। हाँ, एक टर्शरी में मैं थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज कर दूँ, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया वो। देखो यहाँ पे ये दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो नियोपेंटाइल, सॉरी, दिस इज ऑल्सो नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। अब मैं इसका टर्शरी वाला आपको दिखा दूं, टर्शरी वाला बाय मिस्टेक मुझसे वो दोनों बन गया था। तो यहाँ पे ये टर्शरी है 4 कार्बन, तो टर्शरी ब्यूटाइल आपने बोल दिया। अब इसी से टर्शरी पेंटाइल भी हम बना सकते हैं। कैसे, देखो जरा, टर्शरी पेंटाइल में क्या होगा, ये देखो, ये CH3 अटैच है, यहाँ पर डैश है, और फिर यहीं पे आप क्या ऐड कर दो CH2, और यहाँ पे क्या ऐड कर दो CH3, और फिर यहाँ पे CH3। तो ये देखो CH3, फिर ये 2 कार्बन ऐड हो गए, यहाँ पे एक और कार्बन, तो यहाँ पे टोटल ये भी टर्शरी जैसा, क्योंकि एक कार्बन जो है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। एक जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 3, तो वो हो गया टर्शरी। बट टोटल कार्बन कितने हैं, 5, सो दिस इज टर्ट। 5 कार्बन के लिए क्या बेटा, पेंट और YL। तो कन्फ्यूजन ना हो, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप एक बार फिर से बोल सकते हो। तो नियो ग्रुप भी आपको क्लियर हो गया, ये नियो ग्रुप हो गया। नियो ग्रुप में देखो जरा, व्हेन अ कार्बन इज बॉन्डेड टू, व्हेन अ कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन्स, 4 कार्बन से अटैच होगा, डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच होगा, तो नियो, नियो ग्रुप बनेगा। अब उसमें डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच होगा तो कितने टोटल कार्बन जाएंगे, 5 तो हो जाएंगे आराम से। एक तो खुद, वो खुद है, और 4 उसके अटैचमेंट हो गए, तो नियो पेंटाइल बन गया। और जो आपका टर्शरी होता है, टर्शरी, उसमें जो कार्बन होता है, चाहे वो ये वाला कार्बन, आप ये कार्बन ले लो और ये कार्बन, उसमें डायरेक्टली कितने ग्रुप, कितने कार्बन से अटैच होता है, सॉरी 3 कार्बन से, तो इसको दैट इज नोन एज टर्शरी। 4 कार्बन टर्शरी ब्यूटाइल, 5 कार्बन टर्शरी पेंटाइल। So clear to all of you? Next, next, last one. Now we are going to learn about the benzyl group. Benzyl group. What is benzyl group? You have this benzene ring, और ये बेंजीन रिंग में अगर आपने ऐड कर दिया CH3, so the name is, the common name is of this compound is toluene. टोलुइन से क्या किया आपने, एक हाइड्रोजन हटा दिया, टोलुइन से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, so we get this compound CH2 dash. This is known as benzyl. This is known as benzyl. This is known as benzyl. ध्यान देना बेटा, आपने थोड़ा सा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, बेंजाइल। अगर आपके पास बेंजीन होगा, बेंजीन का क्या होता है बेटा, C6H6, वहाँ से अगर आप एक हटाओगे हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा आपको, C6H5 डैश। सो दिस इज बेंजीन, बट दिस इज नॉट बेंजाइल या बेंजाइल, दिस इज व्हाट, फिनाइल। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेंजीन से बेंजाइल नहीं बनता। बेंजाइल कहाँ से बनता है, ये वाले स्ट्रक्चर से। जब आपके पास टॉलुइन होगा या बेंजीन जब भी CH3 से अटैच होगा और उसमें से अगर आप हाइड्रोजन हटा दोगे, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज, मैंने बताया भी था, बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज फीन। सो फीन से इसको हम बोल देते हैं फिनाइल। तो दोनों में आपको क्लियर कट हो जाना चाहिए, बेंजीन से बेंजाइल नहीं बनता, बेंजीन से हाइड्रोजन हटाने पे फिनाइल बनता है। और बेंजाइल क्या होता है, बेंजाइल इज दिस, बेंजाइल का मतलब बेंजीन विथ CH2, बेंजीन विथ CH2। सो ये पूरे कंपाउंड को, ये जो पूरा कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल। पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ओके, ये जो पूरा कंपाउंड आपने बना दिया, दिस इज, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखो, ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड जो ये मैंने लिखा है, ये पूरा बेंजीन प्लस ये जो CH2 लिखा है, ये सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ओके, सो फॉर टुडेज I think this is more than enough. Now in next lecture we will start with IUPAC nomenclature and the functional group.
फंक्शनल ग्रुप क्या है और कौन कौन से हैं, कैसे उनको ड्रॉ करते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं, वो सब सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।